पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पच्छो एक पुल पच्छो पैर छोड़ अड़ी सुती पैर छोड़ अड़ी सुती पीर की सार न जानी 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 पीर छोड़ अड़ी पीर की सार न जानी पीर की सार न जानी पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पच्छो ताणी पुल पुल पच्छो ताणी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुक्ति फिर छोड़ी सुती अवगुण मुक्ति तिस तन विदण राते तिस तन विदण राते काम क्रोध अहंकार विगुति काम क्रोध अहंकार विगुति हौ में लगी ताते हौ में लगी ताते पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पच्छो ताणी पुल पुल पच्छो ताणी उडर हंस चलिया फुरमाया उडर हंस चलिया फुरमाया पस्म समाणी पस्म पसम समाणी नानक सच्चे नाम नानक सच्चे नाम नाम विहुणी नाम विहुणी नाम विहुणी नानक सच्चे नाम विहूणी नानक सच्चे नाम विहुणी पुल पुल पच्छो ताणी पुल पुल पच्छो ताणी पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पच्छो ताणी पुल
ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਗਰੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੋਰ ਪਾਣਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਭਵਜਲ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਏ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਚੁਟਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰਮ ਸਾਕੈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेयर यू आर मिस्टेकन, हाउ वी आर मिस्टेकन, हम भूलते कैसे हैं और भूलने के बाद होता क्या है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ
ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰ ਨੋਨ ਇਨ ਦ सोसाइटी। क्योंकि उस बेटे ने वो पतित हो गया और वो माँ प्यो तो मुनकर हो गया और उसने किसी गलत जगह अपनी मन मर्जी अनुसार ब्याह करा लिया, माँ प्यो दोनों डिप्रैशन ही चले गए। मनु किसी ने कहा वो तुहाडी काउंसलिंग मंगदे ने। काउंसलिंग विच मैं उन्हां नाल सिर्फ ये डिस्कस किया, तुसीं हुण पता की सोचना है, तुसीं यह सोचना है कि तुसी इस धरती ते पहले माँ प्यो नहीं आए हो। यू आर नॉट ओनली द फर्स्ट पेरेंट्स जिन्हां नाल मिस हैपनिंग हो गई है। कोई गल नहीं, बड़े लोगों नाल होंदी है, लेकिन तुहानू यह फीलिंग आ रही है असी नून, साडा नां, साडा फेम, सानू सारी दुनिया मंदी और लोकी कहणगे इन्हां दे बच्चे ने यह काम कीता है। ये गल सोच के तुहानू डिप्रैशन बॉदर कर रहा है। ये गल सोच के तुसी सोसाइटी च नहीं जा रहे, ये गल सोच के तुसी गुरुद्वारे नहीं जा रहे, ये गल सोच के तुसी जात बरादरी विच विआह शादी लोकां दे प्रोग्रामां ते नहीं जा रहे। तां हुण तुसी जाओ और जांदिआं सोचो लोकी की कहणगे। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦ सोसाइटी ਔਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ डिप्रैशन ही चली गई और मैं स्कीज़ोफ्रेनिया मरीज़ हो गई और मैनू वो दवाई खानी पैंदी है। मेरा पति भी काफ़ी मेरे नाल दुखी है। क्या हो की गया? कहती जदों मेरे बेटे की डैथ हुई, मेरा बेटे की लाश नूं घर लैके आए तो मैनू सारिਆਂ ने कहा तुम डेड बॉडी के पास बैठ के माला फेरो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। कहती है मैंने पूछा अगर एक बारी वो मर गया तो माला फेरने से तो जिंदा नहीं होगा। पर सारिਆਂ ने मैनू डांटिया, गुस्सा किया कि तू अंधविश्वास की गल कर रही है। कहती है मेरा बेटा जिंदा नहीं होया। अज तक मेरा पति अते सारे लोग मैनू एक्यूज़ करते हैं तू उस वेले अंधविश्वास दिखाया और तू उस वेले माला नहीं फेरी, इसलिए तेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ। साध संगत जी तुसी सारा ने सोचना कुदरत के नियमां च इस तरह माला फेरन नाल किसी बाबे दे नाल धागे तवीत दे नाल या किसी मणिया मसाणा दे नाल किसी भी ढंग दे नाल कोई डेड बॉडी तो जिंदा हो नहीं जाती। वो मैनू कहती है आपका रिलीजन क्या बोलता है? इंग्लिश मेरे नाल गल करे सी। मैं उन्हें कहा मेरा रिलीजन मैनू सिखांदा है रज़ा च रहीदा है, पर तू की चाहनी है? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੋਕਸ।
ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੀ ਬਲਾਂਡ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗਲਤ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, उस इंसान दे विच ना देखा करो लोकस। तुम्हारे में मेरे को मेरा बेटा लोकस नज़र आ रहा है, वरना मैंने तुमको मारना था, वरना मैंने तुमको गुस्सा करना था, पर लोकस समझ के, मेरा पुत्र समझ के तुम्हें माफ़ किया। तुसी हर किसी लोकस पैदा कर सकते हो। सानू गुरबाणी की सिखाती है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना डाए। सानू बाणी की सिखाती है, घट घट मैं हरजू वसै। सानू बाणी सिखाती है हर किसी च रब वसदा है। मैं ये वाला ही फंडामेंटल उहदे नाल डिस्कस किया, हर किसी च रब वसदा है, तेरा लोकस हर किसी च वसदा है, और लोकस नू देख के तेरा लोकस जिंदा हो गया, वो खिड़ गई, उस तो बाद वो ठीक हो गई। और मैं बड़ा हैरान होया कि अगले दिन उहदा पति कॉल करके पुछदा है, वीर भुपिंदर सिंह कोल काउंसलिंग का कोई सर्टिफिकेट है? ही इज़ क्वालीफाइड डॉक्टर। ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਸੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। 8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਸ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇਖਦਾ। ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੂਲਤੇ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਔਰ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਨ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, हम सब वी ऑल आर वनरेबल टू पुल्लो। हम सब भूल सकते हैं, भूलते हैं, लेकिन रब नहीं भुलता है। गुरबाणी विच रब दा कॉन्सैप्ट पता की है? रब दा मार्ग कदे भी गलत नहीं है। रब दा मार्ग तुहानू कदे भी कुराए नहीं पाएगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ सारे मनु सवाल पूछते हैं, वीर जी अंदर की आवाज़ को कैसे माने कि आवाज़ ठीक है कि गलत है? तो मैं बड़ी वारी बार बार सेम एग्जाम्पल देंदा कि तुसी काम वास्ते घरों बाहर निकले, तुहाडा प्रोजेक्ट है, तुहाडा इंपोर्टेंट काम है, तुहानू बड़ी मुश्किल जॉब मिली है, तुहानू 3 महीने का प्रोजेक्ट दिता गया भाई 3 महीने में ये काम ख़त्म करना है, पर तुसी अपने ऑफिस 9 बजे पहुँचना है और तुसी बड़े टाइम सिर अपने घरों 8 बजे निकले हो और तुहाडी गली दे कॉर्नर ते एक माता सड़क पार करना चाहती है, या वो गिर गई है, या उसनू दवाई की लोड़ है, या उन्होंने पानी की लोड़ है, तुहानू एक आवाज़ आती है, कार से उतर, ये माता किसी की माता है, तेरी माँ भी है, चल इसको पानी देते हैं, चल इसको सड़क पार कराते हैं, चल इसको दवाई लेके देते हैं। वर्सेस एक आवाज़ आती है, अबे ऐसे रोज़ कोई ना कोई गिरता रहेगा, रोज़ तू ऑफिस लेट हो जाएगा, तूने प्रोजेक्ट करना है, तेरा बॉस गुस्सा करेगा, अबे छोड़ यार चलो चले। ए जिहड़ी अंदरों आवाज़ आई ना, जिहड़ी तैनू भला करन वास्ते रोक रही है, ए मन की मत दी आवाज़ है, ए जम दी आवाज़ है, ए विकार दी आवाज़ है, ए ईवल थॉट है। पर जिहड़ी आवाज़ आई ना भला करन वास्ते, वो रब जी की आवाज़ है, वो गुरु की आवाज़ है, वो पारलौकिक पैगाम है, वो तुर की बाणी दा सुनिया है। जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है ना, ये बाणी सानू साडे अंदर दी तुर की बाणी सुनन दी जात सिखांदी है। सो रब जी सानू नहीं भुलांदे हन, रब जी दा सुनिया सानू सीधे राह पांदा है। मैं इस गल नू दोबारा रिपीट कर रहा, क्यों वो बाद विच दसदा। रब जी सानू सीधे राह पांदे हन, रब जी सानू नहीं पटकांदे हन, रब जी सानू कुराए नहीं पांदे हन। क्यों? क्योंकि अपुल हन। जिहड़ा आप अपुल है वो सानू नहीं भुलांदा, वो हमेशा अपुल मीन्स परफेक्ट है, परफेक्ट रस्ते ते ही सानू पांदा है। ये मैं क्यों कह रहा? इस करके कि तुसी सब लोग बहुत कथा सुनते हो, तुसी सब लोगों ने बड़े लैक्चर सुने हुए ने, तुसी सब लोग टीवी ते भी बड़े प्रोग्राम सुनते हो, तो हुण तुहानू सुनन नू मिलेगा, तुसी हैरान होवोगे। सानू कहा जा रहा है ओ ये रब ने एक माया खिलारी हुई है, मनुख नू पटका देंदा है रब। कैसे वाला तसव्वुर किया है? हाईली मिस्टेकन, कंट्राडिक्टेड टू गुरमत। रब ने कोई माया नहीं खिलारी हुई, रब ने कोई कंडे नहीं खिलारे हुए, रब कोई नहीं पटकांदा। भुल्लन अंदर सबको मीन्स मैं अपने थॉट प्रोसेस और असी सारे जितने मनुख हाँ असी भुल सकते हाँ, भुलदे हाँ, पर रब जी का मार्ग परफेक्ट है। उन्होंने कहते ने अभुल गुरु करतार। बल्कि मैं भुलदा हाँ, भुलिया नू सीधे राह पाण वाला उन्होंने कहते ने भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। वडभागी की होंदा है? वडभागी ये नहीं होंदा पिछले जन्म के भागां करके गुरु मिला है, नहीं। वडभागी का मतलब होंदा है
ਗੁਰੂ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। वडभागी ना मतलब जो बताया उस पे चले, अपने भाग आप लिखे, मस्तक पे डेस्टिनी अपनी आप लिखी। सो असी ये समझना है भगवान जी ने कोई नेगेटिव किस्म की माया नहीं खिलारी हुई। भगवान जी इंसान को नहीं भुलाते हैं। यह गुरमत का कॉन्सेप्ट है। सो गुरमत का कॉन्सेप्ट की है रब। रब मतलब जो सीधे राह पांदा है, रब जो भटकिया नूं भी सीधे राह पांदा है। तीही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्या रहण विहाणी। असी अपने अवगुणा वाले ख्यालों विच सुत्ते रहंदे हां ते उहदे नाल अपना जीवन बिताते हैं। फिर तुसी सुनोगे शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप वेख्या गुरमुखी से बुझाए। कहते जी रब ने एक शक्ति खिलारी हुई है और मनुख नूं भटकांदा है। फिर मनुख नूं भटका भटका के दुखी करता है। जदों मनुख लहू लुहान दुखी हो जाता है फिर वो कहता मेरा नाम नहीं ना रहिया, लेगा मेरा नाम, फिर करूँ तेरे को ठीक। इंज नहीं है, ऐसे वाला रब नहीं है। कैसे वाला रब है? हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। उन्हें शब्द ही कहते हैं अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक। गुरबाणी तो कहते गॉड एम्ब्रेसिस, गॉड नैवर पनिशिज। गॉड तो असी बार बार पढ़ते हैं मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन हो संभल थकी जी। ओह कदे ना बोले कौड़ा हो संभल थकी जी। ओ कदे ना बोले कौड़ा मिठ बोल, मिठ बोलड़ा जी। हर सज्जन स्वामी। जो गॉड में तसव्वुर करना है गुरबाणी सिखाती है। गुरबाणी टेल्स मी द ट्रुथ, द फैक्ट। गुरबाणी मन सिखाती है तू एस्यूम कर केड़े वाला गॉड जेड़ा मिठा बोलता है। क्यों? इस करके कि जैसे वाला गॉड तू मनेगा वैसे वाला तू बन जाएगा। लेखा जोखा होता है। ऐसे वाला रब असी बनाया है, ऐसे वाला बनाया है। इस करके असी आस पास अपने जानन वालियां नूं किसी नूं भी माफ़ नहीं करदे हां, पनिश करदे हां, गालां कढ़दे हां, उच्चे बोल बोलदे हां, भैड़े बोल बोलदे हां। माफ़ ना करके पनिश भी जरूर करदे हां। जिंदगी भर वैर पालते रहते हाँ। तुमने मुझे ऐसे कहा था, तुमने फलाने टाइम पे मेरे से पूछा क्यों नहीं था। एक जगह मैनू सुनने को मिला 35 साल बाद, 35 साल बाद नू कहती है मेरे को तुम्हारी माँ के साथ इसलिए खुंदक है कि तुम्हारी माँ ने पहले हमारा रिश्ता रिजेक्ट क्यों कर दिया था। कर दिया था पर उसके बाद शादी हो चुकी है। नहीं, फिर तुम्हारी माँ ने कहा था तू की दाज विच लेके आई है। तुम्हारी माँ ने कहा था
पर वो था को मैंने प्रेजेंट टेंस में रखा हुआ है और मैं छोड़ूंगी ही नहीं। क्यों? ऐसे वाला रब बनाया हुआ है। भगवान सज़ा देता है, सज़ा देने वाला भगवान रखा, सज़ा देने वाले उसके चमचे जम बना लिए, सज़ा देने के बाद भगवान का एक नरक और स्वर्ग बना लिया। ये सारा कुछ की किता? अपनी गलती नू ना समझिया और एक फोबिया तैयार कर लिया। सो गुरबाणी सानू जीवन जाच प्रेजेंट टेंस विच सिखा रही है और कह रही है कि तू रब ऐसे वाला तसव्वुर करना है कि रब माफ़ कर देंदा है और रब मिठा बोलदा है, ताकि तैनू ये वाली जाच आ जावे। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेहे कर्म कमाए। रब जे माफ़ कर दिंदा ते मैं अज तो फॉरगिवनेस सीखनी है। रब जे हर कीती गलती नू माफ़ करके भुला दिंदा, मैं भी भुलाना सीखना है। पर मैं सच्चे मार्ग तो खुंझना नहीं है। सो जदों असी अवगुण बार बार करते हाँ तां असी भुलते हाँ। पर मनु ये पॉइंट बार बार गल करनी पै रही है कि भुलन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार दा मतलब कोई शरीरक नहीं होंदा। रब शरीरक नहीं है जो किथे सतवें आसमान ते अलग बैठा होया इस सृष्टि तो अलग। अते रब दा मतलब रब दा सुनिया, रब दा सुनिया मीनस परफेक्ट गुरु। इस करके गुरु भी भुलदा नहीं है। सो एक गुरमत का कॉन्सेप्ट है, भुलन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार। गुरु मीन्स शब्द गुरु, गुरु मीन्स सच दा मार्ग, गुरु मीन्स परफेक्ट रास्ता, गुरु मीन्स परफेक्शन वाली लाइफ। असी सारे अवगुण भरे हुए हैं। सानू की सिखाया? अवगुण छोड़ गुणा को तावो। डे बाय डे अपनी मिस्टेक्स को छोड़, अपने स्वभाव को चेक कर और उसको छोड़ के गुण ग्रहण कर। साडे चो कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी सानू परफेक्ट होने की जाच सिखाती है। रब परफेक्ट है, मैं परफेक्ट नहीं हाँ। मनु चंगे चंगे गुण दे के सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, गॉड जैसा बनाना चाहती है। ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जदों असी शब्द पढ़ांगे, और तुहानू मैं गल कर रहा हाँ कि तुसी सुनना, लिखिया होया भी मिलेगा जिथे अर्थ लिखे होंदे ने स्टीक विच। शिव शक्ति आप उपाय के करता आपे हुक्म बरताए। भगवान ने एक शक्ति पैदा की हुई है कि इंसान को भटकाता है, पर शिव शक्ति आप उपाय के करता कौन है? करता है मेरा मन। मेरे मन ने एक नेगेटिव ख्यालों की गेम चलाई हुई है और नेगेटिव ख्यालों की शक्ति नू बिलीव करता है। शिव शक्ति आप उपाय के, रब जी ने नहीं उपाई। काश ये वाला एक बारीक, मोस्ट सिंपल, एप्लीकेबल टू ऑल, यूनिवर्सल ट्रुथ दा मैसेज ये असी समझिए। इट डजंट मैटर यू बिलोंग टू विच रिलीजन, इट डजंट मैटर तुसी किहड़े जेंडर दे हो, किहड़े स्टेटस दे हो। गुरबाणी सानू सिखांदी है साफ साफ क्लीयर क्लीयर मैसेज। अवगुण दी सोच तेरी है। हुण इसनू असी ध्यान नाल पढ़ीए। शिव शक्ति आप उपाय के करता मेरा मन, आपे हुक्म बरताए, हुक्म बरताए आप वेखै मेरा मन देखता है। गुरमुख किसे बुझाए? जो सतगुर दी मत लैंदा है उन्होंने समझ आ जाता है
कि आई एम रॉन्ग, मैंने गलत सोचा, मैं गलत रास्ते पे गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੀ, पुल पुल पछताणी, फिर छोड़ी अड़ी सुती। फिर छोड़ी अड़ी का मतलब मैंने सच के रास्ते को इग्नोर किया। फिर मीन्स गॉड, गॉड मीन्स सतगुर, सतगुर मीन्स सच का रस्ता, सतगुर मीन्स विजडम का रस्ता। मैं उसनों फिर छोड़ी अड़ी सुती। मेरी मत सच नूं छोड़ के सुती हुई है, मीन्स इग्नोर कर दी है। फिर की सार न जानी, नहीं मैं समझदा कि सच ते टुरा दा कितना बेनीफिट हो सकता है। आज साढ़े सारियां दे घरां विच नूं सस दा झगड़ा है, असी सारे परेशान हाँ। असी भावें कोई नूं है, भावें कोई सस है, भावें कोई बेटा अपनी माँ दे नाल इंजस्टिस देख रहा है, भावें कोई अपनी माँ दे नाल इंजस्टिस देख रहा है, भावें कोई पत्नी, जिस पासे मर्जी लगाओ। मैं ये गल बार बार सांझ करदा क्योंकि ये साढ़े सब ते एप्लीकेबल है, असी सारे दे विक्टिम हाँ। जब कभी भी हम सीरियल देखते हैं, हमने सीरियल और फिल्म में देखा ये सास बहुत गुस्सा करती है, सीरियल में देखा। ये अपनी बहू शरीफ है उसको टोका टाकी करती है, ये अपनी बहू को अपने पति के साथ बैठने नहीं देती है, ये सास अपनी बहू को अपने मायके नहीं जाने देती है, बिना बात पे बहू के नुक्स निकालती है। मैं एक सीन बना रहा, असी सीरियल ही चाहे देखा, सीरियल रोज आता है और हम रोज देख रहे हैं ये बहू कैसे पिस रही है, पर ये साफ साफ अपने पति को बता क्यों नहीं देती। ये अपने पति को, अपने ससुर को, अपने माँ प्यो को लाके असली बात बता क्यों नहीं देती। ये इतनी भोली क्यों है, ये ऐसे शरीफ सी क्यों बनी हुई है। उस तो बाद असी की कर दें, पता सी कर दें, मैं ऐसे भोली नहीं रहूंगी, मैं तो सास के सामने आकड़ जाऊंगी, मैं तो सीधा सीधा उच्चा उच्चा बोल दूंगी, ऐसे शरीफ बनने का कुछ फायदा नहीं है। असी की पिकअप किया साध संगत जी, शराफत दा पल्ला छड़ के शैतानियत दा पल्ला पकड़ दे। हाँ, इसका मतलब जब हम फिल्म देखते हैं और जब हम सीरियल देखते हैं, हम उसमें से पॉजिटिव एटीट्यूड के आंकड़े, टिप्स नहीं लेते हैं। तुसी सारे भी बड़े सारे सीरियल देखते हो ना, नोटिस करना, कदी दो दरानी जठानी है तो असी भैड़े वाली बनना चाहांगे, क्योंकि जेड़ी शरीफ वाली है वो क्यों सफ़र कर रही है, मैंने सफ़र नहीं करना। तो असी की सोचा, मैं उच्चा बोलूंगी, मैं टिट फॉर टैट जवाब दे दूंगी, मैंने अपने ससुराल के घर की, अपने पति की और सास की इज्जत नहीं रखनी, पिसना नहीं है मैंने, है ना। सो असी हर नेगेटिव जो फंडामेंटल है, नेगेटिव जो प्रैक्टिस है, उसकी ताकत नूं पसंद किया। ताकत नूं की कहंदे ने, शक्ति। इस शक्ति नूं की कहंदे ने, शिव शक्त। आप उपाय कै करता आप पे हुक्म बढ़ता है, पर अर्थ की किते जाते ने, शिव शक्त भगवान जी ने उपाई है, भगवान जी इंसान को पटकाते हैं। मैं लोगों को पूछदा, तुसी अपने बच्चे नूं जदों स्कूल भेजदे हो, बाहर सर्दी है या गर्मी है, सड़क पे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं, ऊंचा नीचा हिसाब किताब है, तुम अपने बच्चे को नंगे पांव भेजते हो? नहीं, जूते पहना के भेजते हो, घर में बैठ के अरदास करते हो, हाय मेरे काके नूं तत्ती वाह ना लग जाए। जिस वैन पे बैठाते हो, जोर से ब्रेक मत मारना, मेरे बच्चे को ध्यान से ले जाना। तुसी दुनियावी मम्मी पापा हो,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਕਰੂਅਲ ਰੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, एक बिना दे 10 बीर ले तो मूड़ा को कहाँ करे। असी ये अर्थ किते ने रब 10 चीज़ां दिंदा है, तैनू एक चीज़ नहीं मिलती है। एक वस्त कारण तैनू जिहड़ी एक नहीं मिलती है, ਉਹਦੇ कारण तू बड़ा गिड़गिड़ांदा है। जे रब है 10 वस्तुआं भी खो लवे तो यही अर्थ किते हुए ना असी। साध संगत जी अफसोस है, सुखमनी सोसाइटीज़ बड़ियां बनियां, सुखमनी असी पढ़ते भी बहुत हाँ, पर असी समझते वही हाँ जो असी समझना चाहते हैं। जो नैगेटिव्स की शक्ति सानू पसंद है, पर ये अर्थ नहीं ने। ऐसे वाला क्रूअल गॉड तो समझाया ही नहीं। रब दाता देण वाला है, सबना जियां का एक दाता, खोण वाला नहीं है। 10 वस्तु किनू कहते ने? मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रियां दे स्वाद दी अक्ल। पर 10 वस्तु इन्हां दे जिहड़े मैनू मिले हुए ने, बिना किसी अनकंडीशनल मनु अखां तो देखण दी शक्ति मिली हुई है। कान मिले हुए ने, सब कुछ। हुण मैं देख रहा, मेरी मदर शी इज़ 94, किस तरह उन्होंने देखण दी शक्ति घट रही है, किस तरह उन्होंने सुनन दी शक्ति घट रही है। आई एम नोटिसिंग, बट नॉट ओनली नोटिसिंग, आई एम विटनेसिंग इट। मैं देख रहा कि मेरी भी सुनन दी शक्ति घट रही है, मेरी भी एक नज़र घट रही है, मेरे भी दंद टुट रहे हैं। इस तरीके दे नाल सब कुछ हो रहा है। हुण असी जदों अपने ते टुका के सोचते हैं ना, ਤਾਂ पता लगता है 10 वस्तु ले पाछे पावे। मीनस मैं इन्हां सारियां दे स्वादां दे चक्रां दे पिछे पिया रहिंदा हाँ। एक वस्त कारण, वो एक वस्त की होंदा है? सच दा मार्ग, सच दी अकल, सीधे पासे पैण दी सुमत। एक वस्त कारण भी खोट गवावे। खोट की होंदा है? खोट होंदा है इम्प्योरिटी। ये सोने का जेवर है, इसमें इतनी इम्प्योरिटी है। कैसे चेक करेंगे? इसको आग में जलाओ, ये पुड़केगा। वो जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना पुड़केगा, प्योर हो जाएगा, पुड़केगा नहीं। सो इम्प्योरिटीज़ को खोट बोलते हैं। ऐसे की करने भी खोट गवावे। खोट के बिना वाली अक्ल गवा ली तूने। एक बस कारण सच की गल नहीं मन्नी, नैगेटिव का पल्ला फड़िया। एक बस कारण भी खोट गवावा। तेरे कोल रब जी दी चंगे वाली मत है सी, भी खोट विदाउट इंप्योरिटीज़ वाली प्योर मत सी, भी खोट गवावे। एक भी ना दे, ऐ अक्ल नहीं ना तू दे रहा अपने इंद्र ज्ञानेंद्र। 10 बीर ले, फिर तो ये तेरी सीता को चुरा ही लेंगे। आंखें तेरे को गुमराह करेंगी, कान तेरे को गुमराह करेंगे, जीभ तेरे को गुमराह करेगी। ये सारी तेरी सीता को हेर लेंगे, तेरी अक्ल टिकाने नहीं रहेगी, तू भूलेगा, तू डिस्टर्ब होगा। उसको क्या बोलते हैं? सुते हुए ठगाए जाते ने। तू हमेशा अज्ञानता की नींद सुता रहेगा और ठगाया जाता रहेगा। सो अपुल गुरु करतार गुरमत का कॉन्सैप्ट है। रब गुरु कदे भी भटकांदा नहीं है, क्योंकि आप वो परफेक्ट है। किसे शरीरक गुरु की गल नहीं चल रही। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਪਿਰ ਛੋੜ ਅੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।
ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ना, भगवान भटकाता है, भगवान ही हमको पुट्ठे राह पाता है, फिर भगवान की माला फेरो, फिर भगवान का नाम लो, फिर भगवान की उस्सत करो, तो फिर भगवान माफ़ करेगा, तो फिर मुक्ति होगी। ਇਹ वाला कॉन्सैप्ट गुरमत ਦਾ नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ शिव शक्त ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਈ ਔਰ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ।